الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے لیے قائم الیکشن ٹریبیونل کو تبدیل کر دیا ہے۔ راجہ خرم نواز اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور انجم عقیل خان کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ لیگی اراکین اسمبلی نے الیکشن ٹریبیونل پر تعصب اور مفادات کے ٹکراؤ کا الزام لگاتے ہوئے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ابراہیم عباسی سے۔ ابراہیم بتائے گا، راجہ خرم نواز، طارق فضل چودھری اور انجم عقیل خان کی درخواستیں منظور کر لی گئیں۔ ہائی کورٹ کے اندر جو قائم ٹریبیونل تھا اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے لیے، جیسے طارق محمود جہانگیری ان کے اس ٹریبیونل کا حصہ تھے، اس کو ان کو چیلنج کیا گیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو جیتنے والے امیدوار تھے ڈاکٹر طارق فضل چودھری، راجہ خرم نواز اور ساتھ میں انجم عقیل خان، ان کی طرف سے جو چیلنج کیا گیا تھا الیکشن ٹریبیونل کی کارروائی کو، اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ جمعے کو محفوظ کیا تھا۔ وہ فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن ٹریبیونل کو جو تبدیل کرنے کا جو ہے حکم دے دیا ہے۔ اب تفصیلی فیصلہ کچھ دیر کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر جاری کرے گا۔ اپنی تفصیلی فیصلے کے اندر الیکشن کمیشن باقاعدہ طور پر بتائے گا کہ یہ الیکشن ٹریبیونل تبدیل کیا گیا ہے یا ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو درخواستیں تھی البتہ وہ منظور کر لی گئی ہیں۔ اس سے پہلے یہ اعتراض اٹھائے گئے تھے ان تینوں امیدواروں کی طرف سے کہ جو الیکشن ٹریبیونل ہے وہ ہمیں باعث نظر آ رہا ہے، ہمیں وہاں سے انصاف کی امید نہیں ہے، لہٰذا جو نیا جو ہے وہ آرڈیننس آیا ہے الیکشن ٹریبیونل کے متعلق اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا ٹریبیونل جو ہے قائم کیا جائے اور ریٹائرڈ جج جو ہیں ان کے اوپر جو ہے نیا ٹریبیونل بنایا جائے جو اپلیکیشن سنے۔ اس حوالے سے جو جمعے کے روز الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا۔ اس کے مطابق ان تینوں امیدواروں کی درخواستیں جو ہے منظور کر لی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ نمائندہ اسلام آباد ابراہیم عباسی، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ حد کے عزت قانون پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ پنجاب حکومت حد کے عزت کے نئے قانون کے تحت ٹریبیونل قائم کرے گی، جبکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی مشاورت سے ممبر تعینات کیا جائے گا۔ پنجاب میں حد کے عزت بل 2024 نافذ العمل ہو گیا ہے۔ حد کے عزت قانون کے گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق ممبر کی تعیناتی 18 ماہ کے لیے کی جائے گی۔ ٹریبیونل میں زیر سماعت کیس کی تمام ٹریبیونل کریں گے، جبکہ ٹریبیونل دوران ٹرائل ہی فریقین کی باہمی مشاورت سے صلح نامے کی اجازت دے سکے گا اور شکایت کنندہ 6 روز میں حد کے عزت کے قانون کے تحت قائم ٹریبیونل سے رجوع کر سکے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق خاتون یا اقلیتی شخص سے متعلق کیس کی ان کیمرہ سماعت ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت کا حد کے عزت کا قانون 28 سیکشنز پر مشتمل ہے، جبکہ حد کے عزت کے قانون کے تحت فیصلے کے خلاف 30 روز میں اپیل دائر ہو سکے گی اور ٹریبیونل دوران سماعت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد بھی حاصل کر سکے گا۔ شکایت کنندہ اپنی ساکھ کو ثابت کرنے کا پابند نہیں ہوگا۔ شکایت کنندہ کے لیے حد کے عزت کو ثابت کرنا ہی کافی ہوگا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا ہے کہ حد کے عزت قانون میں پیپلز پارٹی کا کوئی حصہ نہیں۔ حد کے عزت بل آئین کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے پاس ہوا۔ دبئی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز نے حد کے عزت قانون کے موقع پر کارروائی کا بائیکاٹ کیا تھا اور میں نے بحیثیت گورنر بل کو روکنے کے لیے کوششیں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بل پر دستخط نہیں کیے تھے، 15 دن بعد حد کے عزت بل از خود منظور ہو جانا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہے کہ حد کے عزت کا قانون سب کے لیے ہے، اسے صرف صحافیوں سے نہ جوڑا جائے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کسی کی عزت اچھالنے، مذہبی منافرت پھیلانے اور قومی اہمیت کے معاملات پر افواہیں پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کبھی کسی چینل نے پاکستان میں حد کے عزت کا دعویٰ کیا، وزیر اطلاعات برطانیہ میں فوری کارروائی ہوتی ہے اور معافی مانگنا پڑتی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ بل کے حوالے سے صحافی اپنا کردار ادا کریں۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ حد کے عزت کا قانون سب کے لیے ہے، وہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ اور لوگ یو کے جا کے آپ کے بڑے بڑے چینلز ہیں، یہ پاکستان میں حد کے عزت کے دعویٰ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی چینل نے پاکستان میں حد کے عزت کا دعویٰ کیا ہو؟ یو کے میں اس لیے جاتے ہیں کہ ٹائم پیریڈ کم ہے اور فیصلہ فوری ہو جاتا ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے، ہزاروں پاؤنڈ کے ڈیمیجز دینے پڑتے ہیں۔ نہیں تو اس پہ کام ہونے والا ہے، اس میں صحافتی تنظیموں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے، ورنہ بہت دیر ہو گئی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی حد کے عزت قانون کی منظوری کا حصہ نہیں بنی۔ پیپلز پارٹی کے گورنر نے بھی قانون کو منظور نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسے قوانین کا حصہ نہیں بنتی، ایک سوچ ایسی ہے جو آزادی اظہار رائے کو دبانا چاہتی ہے۔ جھوٹ پر مبنی فیک نیوز کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ میڈیا ٹرائل کا شکار ہوئی۔ ایک ہمارے سندھ کے ہی ایک جرنلسٹ شہید نصر اللہ گڈانی صاحب، جن کو چند ہفتوں قبل گھوٹکی میں شہید کیا گیا، یہ واقعہ اسی ایک سوچ کی کڑی ہے جو کہ آزادی صحافت کو دبانا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت بالکل ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف قسم کی صحافت ہو، الزام تراشیوں کی صحافت نہ ہو،
झूठ पे मबनी, फेक न्यूज़ पे मबनी सियासत ना हो। पीपल्स पार्टी मीडिया ट्रायल का पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज बनी। गवर्नर साहब के पास गया ये बिल सिग्नेचर होने के लिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर थे, गवर्नर पंजाब, उन्होंने उस पर साइन नहीं की। इस तरीके के कानून पीपल्स पार्टी कभी नहीं लाती। वफाकी हुकूमत ने बजट में सनतों के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दामात का फ़ैसला कर लिया। वज़ारत सनत व पैदावार के तरक्याती बजट में तकरीबन 100% इजाफे की तजवीज़। नए माली साल सनत व पैदावार के लिए 5 अरब 79 करोड़ 50 लाख रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा रिजवान अब्बासी से। रिजवान बताएगा, वज़ारत सनत व पैदावार के तरक्याती बजट में 100% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने बजट में सनतों के फ़रोग़ के हवाले से वज़ारत सनत व पैदावार में 100% बजट में इजाफे की तजवीज़ दी है और नए माली साल में सनत व पैदावार के लिए 5 अरब 79 करोड़ 50 लाख रुपए का तरक्याती बजट रखा है, जबकि रवां साल के लिए वज़ारत सनत की जो ये बजट था ये 3 अरब रुपए मुख्तस था। आइंदा माली साल सनत व पैदावार के 13 जारी जो मनसूबा जात हैं उनके लिए भी फंड रखने की तजवीज़ दी गई है। सनत व पैदावार के जो जारी मनसूबों के लिए 5 अरब 64 करोड़ रुपए से जायद की रकम रखने की तजवीज़ है और आइंदा माली साल में सनत व पैदावार का एक जो नया मनसूबा है उसको भी शुरू करने का फैसला किया गया है। पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल पार्क के 132 केवी के जो ग्रिड स्टेशन के तामीर के हवाले से 1 अरब 30 करोड़ रुपए की तजवीज़ रखी गई है और इसके अलावा कराची में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 70 करोड़ रुपए से जायद का जो तरक्याती बजट है वो रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि बलूचिस्तान में लसबेला के मुकाम पर खसूसी इक्तिसादी जोन की तामीर के हवाले से 1 अरब रुपए की जो तजवीज़ है वो भी रखी गई है, जबकि कराची समेत मुख्तलिफ बड़े शहरों में SME बिजनेस सहूलत सेंटर के लिए 66 करोड़ रुपए की तजवीज़ ये भी रखी गई है, जबकि इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के हसूल से मुतल्लिक मंसूबों के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट तजवीज़ किया गया है। मुल्क भर में 1000 इंडस्ट्रियल स्टिचिंग यूनिट्स का क्याम भी अमल में लाया जाएगा और इसके लिए 30 करोड़ रुपए का बजट तजवीज़ किया गया है, जबकि कराची, लाहौर, सियालकोट सनतों के फ़रोग़ के लिए भी मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी। हुकूमत ने 5 साला मनसूबा 2024 से 2029 तैयार कर लिया है। 5 साला मनसूबा मंजूरी के लिए आज कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में पेश किया जाएगा। NEC 13वीं 5 साला मनसूबे के समाजी इक़्तिसादी मकासद की तजावीज़ पर गौर करेगी। ये मनसूबा तवील मुद्दत इक़्तिसादी मनसूबा बंदी के लिए तैयार किया गया है। इस खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत ने 5 साला मनसूबा तैयार कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद अजमल से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने 5 साला मनसूबा 2024 से 2029 तैयार कर लिया है और 5 साला मनसूबा मंजूरी के लिए आज कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में पेश किया जाएगा। NEC 13वें 5 साला मनसूबे के समाजी और इक़्तिसादी मकासद की तजावीज़ पर गौर करेगी और ये मनसूबा तवील मुद्दती इक़्तिसादी मनसूबाबंदी के लिए तैयार किया गया है। मनसूबे को आइंदा माली साल 2024-25 के बजट के साथ मंजूर किया जाएगा और अहम मुआशी इशारिये 5 साला मनसूबे के तहत तय किए जाएंगे। मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क, अदायगियों का तवाज़ुन, तरक्याती अखराजात सूबे में शामिल हैं, जबकि खुराक और ज़राअत, आबादी, गुर्बत और गवर्नेंस इस्लाहात भी 5 साला मनसूबे का हिस्सा हैं। जी अच्छा शाहिद, ये भी बताइएगा कि सोलर सिस्टम की बड़े पैमाने पर तनसीब हुई है, हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, सोलर शाहिद, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा, सोलर सिस्टम के बड़े पैमाने पर तनसीब, हुकूमत को मुश्किलात दरपेश हैं। ब्यूरोक्रेसी ने सोलराइजेशन को मुल्क के मौजूदा पावर सेक्टर के लिए तबाहकुन करार दे दिया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सोलर सिस्टम की बड़े पैमाने पर तनसीब से हुकूमत को मुश्किलात का सामना है और ब्यूरोक्रेसी ने सोलराइजेशन को मुल्क के मौजूदा पावर सेक्टर के लिए तबाही करार दिया है। ज़राए के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी सार्फिन के बिलों को यूनिटों की बजाय नेट मीटरिंग के तनाज़ुर में तय करने की तजवीज़ दे रही है, जबकि सार्फिन से ज़्यादा नर्ख वसूल किए जाएँ। ज़राए पावर डिवीजन का कहना है कि बिल हुकूमत की जानिब से तय करदा शमसी तवानाई के निर्खों के मुताबिक एडजस्ट किए जाएंगे और नेट मीटरिंग के सार्फिन को 2 अलग अलग बिल जारी किए जाएंगे। एक बिल दरामदी बिजली के निर्खों पर जारी होगा, जबकि दूसरा बिल जो है एक्सपोर्ट रेट पर होगा, जिसका तयन नेपरा करेगा और ब्यूरोक्रेसी की तजावीज़ को सियासी तौर पर सख्त मज़ामत का सामना है। और वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी जो हैं वो पहले ही जो है सोलराइजेशन से मुतल्लिक मालूमात मीडिया में लीक होने के हवाले से तहकीकात का हुक्म दे चुके हैं, जबकि डिस्कोज का मौक़िफ़ है कि ट्रांसफार्मर घरेलू शमसी निज़ाम से सप्लाई के बहाव की वजह से बोझ तले दबे हुए हैं और ज़्यादा गुंजाइश वाले ट्रांसफार्मर से तब्दील करने के लिए सरमायाकारी की जरूरत है। जी सही, बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल।
रवा माली साल के इक्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इक्तिसादी सर्वे के अहम नुकात पर ब्रीफिंग देंगे। रवा माली साल हुकूमत को अहम मुआशी अहदाफ के हसूल में नाकामी का सामना रहा। इक्तिसादी और सनती तरक्की, महंगाई, बिजली की पैदावार के हवाले से अहदाफ हासिल न हो सके। ज़राए के मुताबिक शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने का हदफ हासिल न हो सका। रवा माली साल के दौरान महंगाई 21% के हदफ के बरक्स 26% रही। सनती शोबे की पैदावार 3.4% के बरक्स 1.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.3% हदफ के बरक्स 2.4% रही। सर्विसेज सेक्टर की तरक्की 3.6% हदफ के बरक्स 1.2% रही। अशिया का दरामदी बिल $58 अरब के बरक्स $55 अरब तक महदूद रहने का तखमीना लगाया गया। रवा माली साल के दौरान $30 अरब का बरामदी हदफ हासिल होने का तखमीना है। अशिया का तजारती खसारा $28 अरब हदफ के बरक्स $25 अरब रहने का तखमीना है। रवा माली साल ज़राई शोबे की ग्रोथ 6.25% रही। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 1.21% रही। सनती शोबे की ग्रोथ भी 1.21% रही। GDP का हजम 36 अरब 70 करोड़ इजाफे से $374 अरब 90 करोड़ हो गया। रवा माली साल में गंदम पैदावार शराय नमू का 11.64% रिकॉर्ड हुई है। कपास की पैदावार में 108.22% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चावल की पैदावार में 34.78% का इजाफा हुआ। गन्ने की पैदावार में 0.39% रही। मकई की पैदावार में 10.35% की कमी रिकॉर्ड की गई। MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि नून लीग ने माजी की तरह जान छुड़ाने की कोशिश की तो अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा करेंगे। MKM की 22 सीटें तादाद में कम है लेकिन किरदार अहम है। अगर हम पीछे हट गए तो इनकी नाम निहाद अक्सरियत का पोल खुल जाएगा। हमारी सीटें ना कौमी असम्बली की, ये बज़ाहिर नंबर में तो हम चौथे नंबर पर हैं कौमी असम्बली में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम उस शहर के नुमाइंदा हैं जिसकी आबादी कराची की 15% से ज़्यादा है और 3.5 करोड़ की आबादी का शहर जो अब एक ज़बान बोलने वाले का नहीं, उर्दू बोलने वाले मेमन गुजराती महाजरों का सिर्फ नहीं है, यहाँ सिंधी हैं, पंजाबी हैं, बलोच, पख्तून, सराइकी, हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, हर ज़बान बोलने वाला, हर इलाके का पाकिस्तानी नाम नहाद जो इनके पास अक्सरियत है ना, ये सारी इसकी पोल खुल जाएगी। असल तो ये शहर है, कराची चलता है, मुल्क चलेगा। अगर कराची का बट्टा बिठा दिया तो फिर ये मुल्क का बट्टा भी बैठेगा। दोबारा हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सरगोदा में अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब फॉर्म 47 की पैदावार है। मुल्क में आईन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेने वाली पुलिस इनकी आलाकार बनी हुई है। अदालत हर सूरत जाएंगे, कानून के हसूल का रास्ता नहीं रोका जा सकता। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हूँ, मुझे रोकना गैर आइनी है। उमर अयूब की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ऐसा कहा गया। मैं यहाँ पे सुबह तकरीबन 7:55 से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं और इन्होंने मुकम्मल एक्सेस रास्ता इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का रोका हुआ है। जो मुल्जमान हैं, प्रिजनर्स हैं, उनका भी रास्ता रोका हुआ है। जिन लोगों ने आना हुआ है मुकम्मल सील किया हुआ है। पंजाब पुलिस ने ये शहबाज शरीफ के कहने पे, मरियम नवाज के और मोहसन नकवी के कहने पे, इनका सिर्फ ये मकसद है कि वकीलों को भी अंदर ना जाने दें, लोगों को अंदर ना जाने दें कि कहीं फैसला न हो जाए PTI के जो लोग हैं उनके हक में, और ये रुकावट पैदा कर रहे हैं अदालत की फंक्शनिंग में, अदालत के कामों में। ये उच्च हथकंडों की हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये अदालत को चलने ही नहीं दे रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में भारत से इबरतनाक शिकस्त से पाकिस्तानी टीम का सफर अगर मगर का शिकार हो गया। 2 मैच हारने के बाद पाकिस्तान की सुपर 8 में रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसर होगी। मज़ीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। T20 वर्ल्ड कप के लिए रिटायरमेंट वापस लेने वाले इमाद वसीम भी भारत के खिलाफ फ्लॉप रहे। ऑलराउंडर ने कोई विकेट न ली और बैटिंग में भी 23 गेंदों पर सिर्फ 15 स्कोर किए। इफ्तिखार अहमद भी बुरी तरह फेल हो गए। कैचेस छोड़े, ओवर थ्रो करते हुए रन्स भी दिए और बैटिंग में भी कोई रोल प्ले न कर सके। इफ्तिखार और इमाद के दरमियान गेंदें मिस करने का भी मुकाबला रहा। इफ्तिखार ने तो बॉल को लिफ्ट किया मगर इमाद ने एक ही शॉट के चक्कर में 3 गेंदें जाया कर दी। भारत के खिलाफ अहम तरीन मैच में पाकिस्तान की मिस फील्डिंग की रिवायत बरकरार रही। उस्मान इफ्तिखार ने ऋषभ पंत के 3 कैच छोड़े। बाउंड्री के पास खड़े इफ्तिखार ने कैच के लिए 2 कदम भागने की भी जहमत न की।
पाकिस्तान ने सिर्फ कैच ही नहीं छोड़े, ओवर थ्रो पर भी स्कोर दिए। शाहीन शाफिदी के ओवर में इफ्तिखार ने गलत थ्रो करके स्कोर दिया, शादाब खान ने भी गलत थ्रो करके स्कोर दिया। भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तान का सफर अगर मगर का शिकार हो गया। पाकिस्तान की सुपर 8 तक रसाई के लिए बकिया 2 मैच जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजिम है। पाकिस्तान को अगले 2 मैचेस कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ, जबकि अमेरिका को इंडिया और आयरलैंड से मुकाबला करना है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा कि लगता था कि क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। भारत के खिलाफ इंतहाई खराब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया कि टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। कौम जल्द बड़ी सर्जरी होते हुए देखेगी। हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी है और वक्त आ गया है कि बाहर बैठे नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की क्या वजूहात हैं। शाहिद आफरीदी का वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तानी टीम की अंदरूनी कहानी सामने लाने का ऐलान। कहा कि शाहीन के साथ मेरा रिश्ता किसी और किस्म का है। अगर मैं कोई बात करूंगा तो लोग कहेंगे कि अपने दामाद को सपोर्ट कर रहा हूं। अगर मेरी बेटी, बेटा या दामाद गलत हैं तो मैं इन्हें भी गलत कहूंगा। पिछले कुछ अरसे में हमारी सिलेक्शन कमेटी और बोर्ड ने बड़ी गलतियां की हैं। वर्ल्ड कप के बाद खुलकर बात करूंगा। हमारे लोगों ने खुद इस इवेंट को खराब किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल पाकिस्तान में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आईसीसी को भेज दिया। टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेला जाएगा। भारत अपने तमाम मैच लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में खेलेगा। फाइनल समेत 7 मैच लाहौर में होंगे। कराची इफ्तिताही समेत 2 मैचों और 1 सेमीफाइनल की मेज़बानी करेगा, जबकि रावलपिंडी में 1 सेमीफाइनल और 5 मैच खेले जाएंगे। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको आगाह करें। भारत अपने तमाम मैचेस लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में खेलेगा। आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल समेत 7 मैच लाहौर में होंगे। चीनी के एक्सपोर्ट के मुतालिक बड़ी खबर। वफाकी हुकूमत ने इजाफी चीनी की बरामद की इजाज़त देने की तैयारी कर ली है। पहले मरहले में 1.5 लाख मीट्रिक टन चीनी की बरामद की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 1.5 लाख टन चीनी की बरामद के लिए इजाज़त दे दी। चीनी की बरामद के लिए समरी जल्द ईसीसी में पेश करने का फैसला किया गया है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि यह मामला ईसीसी में जाएगा, जहां पर इस हवाले से मज़ीद मंजूरी ली जाएगी। वफाकी हुकूमत ने इजाफी चीनी की बरामद की इजाज़त देने के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वफाकी हुकूमत ने इजाफी चीनी की बरामद की इजाज़त देने से मुतल्लिक अब इस हवाले से तैयारियों का आगाज़ किया है। समरी तैयार की गई है जो जल्द ही ईसीसी में पेश की जाएगी और इस हवाले से फैसला किया जाएगा कि चीनी बरामद की जाएगी या नहीं की जाएगी। चीनी की बरामद के लिए समरी जल्द ईसीसी में पेश की जाएगी। पानी पीटी और दीगर की थाना गोलड़ा में दर्ज 2 मुकदमात में बरियत का तहरीरी फैसला जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम खान ने दोनों मुकदमात में बरियत का तहरीरी फैसला जारी किया। पानी पीटीआई मुराद सईद शाह, महमूद कुरैशी, असद उमर शाह, फरमान और दीगर को बरी करार दिया जाता है। मुकदमे में गैर हाजिर मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत और उनके गिरफ्तारी किए जाते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि अहम खबर है, इस मुतालिक आगाह करें। गैर हाजिर मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत फौरन गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। बानी पीटीआई और दीगर की 2 मुकदमात में बरियत का तहरीरी फैसला जारी किया गया है। तीसरी बार भारत का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने पर मुबारकबाद पेश कर दी। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद के थाना सदर में गिरफ्तार अहमद फरहाद केस में अहम पेशरफ्त। अहमद फरहाद को ज़िला फौजदारी अदालत में पेश कर दिया गया। मारूफ शायर अहमद फरहाद को मुजफ्फराबाद पुलिस की जानिब से आज रिमांड मुकम्मल होने पर ज़िला फौजदारी अदालत मुजफ्फराबाद में पेश कर दिया गया, जहां फौजदारी अदालत मुजफ्फराबाद ने अहमद फरहाद को जुडिशल कस्टडी में देते हुए जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। जबकि पुलिस की जानिब से नामुकम्मल चालान पेश करने पर अदालत ने अहमद फरहाद को 24 जून को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद अहमद फरहाद को सेंट्रल जेल राड़ा मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के दौराए उर्दन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार कल उर्दन का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। उर्दन की मेज़बानी में गज़ा के लिए हंगामी इंसानी इमदाद पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 11 जून को होगा। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म उर्दन में गज़ा के लिए हंगामी इंसानी इमदाद पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा उर्दन फ़लस्तीनियों बिलखसूस गज़ा के महसूरीन के लिए पाकिस्तानी हिमायत की मौक़िफ़ का इयादा है। इसहाक़ डार गज़ा की
हेटी में इसराइली कत्लेआम की मजम्मत करते हुए महसूरीन के मसाइल पर आवाज़ उठाएंगे। हजीरा ईद कुर्बान की आमद है और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कोई बकरा खरीद रहा है और कोई बैल और कोई दुम्बा खरीदने में मसरूफ़ है। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मज़ीद जानते हैं राजा जमील से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो शहरी हैं, जो मुसलमान लोग हैं, वो दुनिया भर की तरह यहाँ हजीरा आज़ाद कश्मीर में भी वो कुर्बानी के जानवर ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला पुंछ की सबसे बड़ी मवेशी मंडी द्वारंदी के मकाम पर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ मंडी के ऑनर हैं जनाब साईं साजिद मिनाज साहब। उनसे हम बात करते हैं कि वो यहाँ पर किस तरह के इंतजामात करते हैं और लोग की किस तरह खिदमत कर रहे हैं। जी नज़र आ रही है आपको सबकी मंडी, इसके इंतजाम देखें, पानी है, शेड है, पीने के लिए पानी है, आवाम के लिए पीने के लिए पानी है, उनकी रिहाइश के लिए बंदोबस्त है, जानवरों की रिहाइश के लिए बंदोबस्त है। ये सारे 25-30 कनाल रकबा जनाब ने मंडी में मुख्तस किया हुआ है लोगों की सहूलत के लिए। इसे तकरीबन 40 साल से ज़ायद अरसा हो गया है हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये कहना था इनका कि ये 40 साल पुरानी मंडी है, 40 साल से ये मंडी यहाँ पर लगाई जा रही है और लोगों को, जो व्यापारी हैं, उनको भी यहाँ पर सहूलियात दी जाती हैं और जो ख़रीदार हैं उनको भी हर मुमकिन सहूलियात देने की कोशिश की जाती है। और इनका ये भी कहना था कि ये अपने ये तसलसल जो है ये अपना जारी रखेंगे। जी जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आती जा रही है, शहरी भी रुख कर रहे हैं मवेशी मंडियों का। कराची मलीर की मवेशी मंडी में 10 मन बैल सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ इसरार मोहिरी। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब है और लोग जो है अपने पसंद के जानवर ख़रीद रहे हैं। जहाँ सिर्फ ना बकरे तो फिर जो बड़े जानवर हैं वो भी जो है शहरी पसंद करते हैं और उनको ख़रीदते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची मलीर की ये मंडी है जहाँ पर ये 10 मन का जो है बदीन की नस्ल का बैल है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि ये 10 मन का ये बड़ा बैल है जो ना सिर्फ शहरियों की तवज्जो का मरकज़ है बल्कि शहरी इसको देखते हैं और पसंद भी करते हैं। इसके लिए इसकी जो खुसूसियत है, इसकी जो नस्ल है वो थर की सूबा सिंध का थर का इलाका है, वहाँ की ये नस्ल है। इसके लिए बात करते हैं जो व्यापारी इनको लाए हैं। ये बताइएगा कितने में आप इसको बेच रहे हैं और इसकी क्या खुसूसियत है, कौन सी नस्ल का है? भाई ये बदीन का नस्ल है, हमारे पेवल बदीन है। इसमें हम 6-7 में दे देगा। 5-6 तो आपने बताया कि हम 10 लाख मांग रहे हैं। मांग रहा हूँ 10 लाख और जो वाला देवे, पर वो जो ग्राहक के साथ देख रहे कितने में देंगे शहरी को? ये शहरी को देगा 5-6 लाख में, 6-6.5-7 में देगा। 6-6.5 लाख में, मतलब आधी कीमत कर दी। अच्छा, ये कितना वजन कितना है इसका? वजन 10 मन है भैया। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि 10 लाख हम डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अगर शहरी जो देख रहे हैं और जो फिल वक्त इतना ही।